السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سلیکٹ پریکشا اسٹڈی چینل پر سواگت ہے، استقبال ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، سی ٹیٹ دسمبر 2024 کے لیے یہ ویڈیو بہت اہم ہونے والا ہے۔ یہ 5واں ویڈیو ہے۔ پریویس ایئر سے یعنی پچھلے سال جتنے بھی سوالات پوچھے گئے تھے 2011 سے لے کر 2024 تک ہم کور کرنے والے ہیں۔ دوستو، ایک بھی ایئرس کا آپ کا سوال نہیں چھوڑنے والے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش یہی ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا، تاکہ آپ کو ایگزام تک ویڈیو ملتا رہے گا اور آپ کی تیاری میں بالکل فائدہ مند ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، بنا گفتگو کیے ہوئے ڈائریکٹ ہم لوگ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک گزارش یہ کریں گے، اگر آپ دوستو ابھی تک سی ٹیٹ کی تیاری بالکل ہی نہیں کی ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر یہ جو سیریز چل رہی ہے اس کو اگر آپ کور کر لیتے ہیں تو 20 سے 25 نمبر آ جائے گا۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں پڑھے ہیں کم سے کم 20 سے 25 نمبر آنے ہی والا ہے۔ لیکن دوستو، اگر اس سے بھی زیادہ نمبر لانا ہے اور اس میں اگر کچھ بھی نہیں پڑھے ہیں تو آپ کا شارٹ نوٹس بہت ہی کم دنوں کے لیے آپ لوگوں کے لیے بہت ہی کم دنوں کی رام بان ثابت ہونے والا ہے۔ یہ دوستو، بہت سارے ابھیارتھی یہ میسیج کرتے ہیں کہ نوٹس کیسے پراپت کیا جائے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ جانکاری دے دی جاتی ہے، اس کے بعد ڈائریکٹ ہم لوگ کلاس کی طرف بڑھیں گے۔ 9305955656 یہ آپ کا واٹس اپ نمبر ہے۔ اس میں میسیج کر کے اردو پیڈاگوجی کا تھیوری آپ کا نوٹس مل جائے گا، اور PYQ 2011 سے لے کر 2024 تک کے سوالات پوچھے گئے ہیں یہ آپ کو مل جائے گا، اور اردو ٹو ہندی ورڈ میننگ جو مشکل الفاظ ہیں اس کا ورڈ میننگ بھی آپ کو مل جائے گا۔ اس کا نوٹس آپ واٹس ایپ میں میسیج کر کے کال نہ کریں بلکہ میسیج کر کے جلد سے جلد پراپت کر لیں، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے۔ بہت ہی شارٹ نوٹس ہے، سارا کور سی ٹیٹ میں جہاں جہاں سے سوالات اٹھایا جاتا ہے سارے ٹاپک کو کور کیا گیا ہے، اور بہت ہی مہتوپورن ٹاپک بہت نقطہ اس پر چین کر کے آپ کا نوٹس کلیئر کیا گیا۔ دوستو، ہینڈ رائٹنگ نوٹس ہے، بس آپ سے یہی ایک گزارش کرنی تھی، اور ڈائریکٹ ہم لوگ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ بھی آپ کا PYQ ہے۔ سب سے آپ کو جاننا ہے کہ یہ کس سال کا پوچھا گیا کوشچن ہے، تو آپ کو اس ویڈیو کو آخر تک مل جائے گا، اس لیے آپ کو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ڈائریکٹ ہم لوگ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوستو، یہاں پر آپ دیکھیے، یہاں پر آپ کا اقتباس ہے، یہاں پر آپ کا اقتباس ہے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ اگر سی ٹیٹ میں لینگویج 1 اگر سلیکٹ کرتے ہیں، اردو لینگویج 1 اردو سلیکٹ کرتے ہیں تو 91 سے آپ کو حل کرنا ہے۔ اگر لینگویج 2 اردو سلیکٹ کرتے ہیں، اگر لینگویج 2 اردو سلیکٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو 21 سے حل کرنا ہے۔ یہ آپ کو تیاری سے زیادہ یہ جانکاری آپ کو رکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے سب ویڈیو میں ہم یہ باتیں بتلا دیتے ہیں تاکہ آپ کو ایگزام میں کنفیوز نہ ہو، آپ کو ذہن میں یاد رہے۔ ٹھیک ہے، ڈائریکٹ ہم لوگ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوستو دیکھیے گا، یہ آپ کا اقتباس ہے۔ اگر آپ اقتباس پڑھنا چاہتے ہیں تو اقتباس کو پڑھ کر کے سوالات کو حل کریں گے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ یہ کیا کریں گے، ڈائریکٹ ہم سوالات کو حل کریں گے اور اس کے بعد اقتباس پڑھ کے آنسر کھوجنے کی کوشش کریں گے۔ دونوں طرف سے حل کر سکتے ہیں، آپ کو جس طریقے سے سہولت ہو، جس طریقے سے ٹائم کور آپ کے لیے ہوگا، مفید ہوگا، اسی طریقے سے آپ کر لیجئے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، ہم لوگ ذرا اس کو پڑھتے ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ آپ بھی اس کو پڑھیے گا تاکہ آپ کو بھی سمجھنے کی اور جواب دینے کی بالکل کیا ہو، فائدہ ہو۔ بجلی انسان کی زندگی میں بڑا آرام اور سکھ پیدا کیا ہے، کیا آرام اور سکھ پیدا کیا ہے۔ اس نے انسانوں کے لیے کئی طرح کی آسانیاں مہیا کی ہے۔ بجلی کئی طرح سے تیار کی جاتی ہے جو انسان کے 20 کام استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ کام سورج کرتا ہے۔ سورج کی گرمی کی بدولت سمندروں اور دریاؤں کا پانی بخارات بن کر دوبارہ پانی کی صورت میں برستا ہے۔ پھر ندی تالے اس پانی سے بھر جاتے ہیں۔ پانی سے بھرے ندی نالے بجلی گھروں کو جنم دیتے ہیں۔ پانی کے زور
और ताकत से एक पहिया घूमता है जिसे टरबाइन कहते हैं। उस टरबाइन से मकनातीस लगा होता है जो उसके साथ साथ घूमता रहता है। इस मकनातीसी तांबे के तारों के सिलसिले को जेनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेरेटर कहते हैं। ठीक है, जेनेरेटर कहते हैं। पानी के बिजली घरों को चलाने के लिए करोड़ों मन पानी की ज़रूरत होती है। आजकल सुस्ती और भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए एटमी तवानाई यानी यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। जिस जगह यूरेनियम का इस्तेमाल हुआ हो उसे एटमी बिजली घर कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इक़्तिबास को पढ़ लिए हैं। अब इक़्तिबास के पढ़ने के बाद डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे? आंसर खोजने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों इक़्तिबास को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप इक़्तिबास में अगर टाइम बचा लेते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। 15 मिनट में, यानी आप कोशिश करें कि 12 से 13 मिनट में आप 15 इक़्तिबास को जल्द से जल्द हल कर लेंगे। पेडागोजी में टाइम देंगे। हाँ दोस्तों, ये भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये कमेंट करते हैं कि दोस्तों पेपर 1 के लिए पेपर 2, दोस्तों पेडागोजी और ये इक़्तिबास पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए होता है, सेम है दोस्तों। सवालात कहीं पेपर 1 में पूछा जाता है, पेपर 2 में पूछा जाता है, ये भी PYQ में आते जाते रहता है। इससे आपको लेना देना नहीं, बल्कि इसमें मेहनत करने की कोशिश करना है। सूरज की गर्मी, देखिए डायरेक्ट हम लोग सवालात की तरफ पढ़ते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सूरज की गर्मी की बदौलत समुद्र और दरियाओं का पानी क्या बन करके दोबारा पानी की शक्ल में बरसता है? बारिश बन करके, भाप बन करके, बल्ब बन करके, बुखारात बन करके। ठीक है, ये आप आंसर जल्द से जल्द लगाइएगा। क्या दोस्तों? बुखारात बन करके क्या करते हैं? बरसते हैं। इधर आप पढ़ चुके थे, देखिए दोबारा यहाँ देखिए, इधर सूरज की गर्मी के बदौलत समुद्र और दरिया का पानी बुखारात बन करके दोबारा बरसती, पानी की सूरत में बरसती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। बहुत ही ईजी है दोस्तों, उर्दू इक़्तिबास हल करना बहुत ही ईजी है। इसीलिए आप इसको ज़रा से मेहनत करेंगे तो आपका 15 नंबर में से 15 नंबर आ जाएगा। कोई भी कट नहीं कर सकता है, ज़रा से मेहनत करेंगे। पानी से भरी नदी नाले किसको जन्म देते हैं? एटमी घरों को, बिजली घरों को, तारीखों को, यूरेनियम के घरों को। ठीक है, पानी से भरी नदी नाली किसको जन्म देते हैं? 92 का अगर देखिएगा, बिजली के घरों को जन्म देते हैं पानी के नाले क्रम के। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं बिजली के घरों को जन्म देते हैं। इसमें आप पढ़े थे, अभी आपको जहन में होगा, अब इसको पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं, टरबाइन किसे कहते हैं? हवा के ज़ोर से घूमने वाला पहिया को, पानी के ज़ोर और ताकत से घूमने वाले पहिया को, हाथ की ताकत से घूमने वाले पहिए को, हाथ की ताकत और हवा के ज़ोर से घूमने वाले पहिया को टरबाइन कहते हैं। 93 का देखिएगा दोस्तों, क्या है? पानी के ज़ोर और ताकत से घूमने वाले पहिया को क्या कहते हैं? टरबाइन कहते हैं। टरबाइन कहते हैं। इधर आप इसको देख सकते हैं, टरबाइन कहते हैं। इसको ज़रा पॉइंट वाले को हम क्या करेंगे? थोड़ा टिक कर देंगे ताकि आप लोगों को हल करने के लिए बहुत आसान। जैसे इधर लिखा हुआ क्या? टरबाइन, जिसे टरबाइन कहते हैं। उस टरबाइन से मकनातीस लगा उसके साथ घूमता रहता है। ठीक है, ये आपको देख लिए हैं। मकनातीस और तांबे के तारों के सिलसिले क्यों क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं, रेफ्रिजरेटर कहते हैं, रोटर कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। इधर आप पढ़े थे, इधर आप देखिए, इधर मकनातीस के तांबे को क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं। अब डायरेक्ट हम लोग बहुत ही जल्द से जल्द इक़्तिबास को हल करेंगे। आजकल सुस्ती और भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए किस काम का इस्तेमाल किया जाता है? शमसी तवानाई, एटमी तवानाई यानी यूरेनियम, बरक़ा टाइम, कमर टाइम। इसमें देखिएगा क्या होगा दोस्तों? 95 का आंसर आपका 2 हो जाएगा। एटमी तवानाई यानी यूरेनियम, एटमी टाइम यानी यूरेनियम, इसमें ऊपर ही में है, आपका देख सकते हैं। एटमी तवानाई यानी यूरेनियम, यहाँ भारी पैमाने को पैदा करने के लिए। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग बढ़ते हैं। क्या 96 सवालात के जवाबात हल करने की कोशिश करेंगे। जगह आप भी लगाइए आंसर। जगह की जमा क्या होगा? जगहों, जगहातों, ये जगहातों, जगहात। ये आप देखिएगा दोस्तों, जगहों की जमा क्या होगा? जगहों। क्या होगा? जगहों। आंसर आपका एक सही हो जाएगा 96 का। ठीक है, अब देखते 97 का सुख का मुतजाद
کیا ہوگا؟ متضاد کو الٹا کہتے ہیں، جس کو ولام شبد بھی کہا جاتا ہے۔ سکھ کا متضاد تکلیف ہوگا، دکھ ہوگا، پریشانی ہوگا، درد ہوگا۔ سکھ کا کیا ہوگا؟ سکھ مطلب آرام ہوتا ہے، اور اس کا دیکھیے گا دکھ کیا ہوگا؟ سکھ کا دکھ ہوگا، آرام کا تکلیف ہوگا، پریشانی کا کیا ہو جائے گا؟ پریشانی کا مصیبت۔ ٹھیک ہے، اگلا دیکھتے ہیں، انسان کی زندگی میں بڑا آرام، سکھ اور آسانیاں کس نے فراہم کی ہے؟ ہوائی جہاز نے، انٹرنیٹ نے، بجلی نے، کمپیوٹر نے۔ کیا دوستو جو اقتباس میں ہے وہی حساب سے آپ کو سوالات کے جوابات دینے ہیں، نہیں تو آپ اپنے من سے لگائیے گا تو آپ کی غلط ہو جائے گی۔ بجلی نے کیا سب سے زیادہ مہیا آرام جو کیا ہے انسان کو؟ بجلی کیا ہے۔ بجلی کو بنانے میں سب سے زیادہ کام کون کرتا ہے؟ سورج، چاند، سیارے، ستارے۔ سب سے زیادہ کام کون کرتا ہے؟ 99 کا دیکھے گا سورج کرتا ہے۔ آپ اوپر میں آنسر کے یہ دے سکتے ہیں۔ اب دیکھیے دوستو، دیے ہوئے شعری حصے کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ دوستو اگر لینگویج فرسٹ اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کا اردو، اگر فرسٹ لینگویج لیتے ہیں، اردو اگر فرسٹ لینگویج لیتے ہیں تو آپ کا ایک اقتباس رہے گا اور ایک نظم رہے گا۔ اگر سیکنڈ لینگویج اردو لیتے ہیں تو دونوں آپ کا اقتباس ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، اگلا ہم سوالات کو ڈائریکٹ ہم کیا کریں گے؟ نظموں کو پڑھتے ہیں اور سوالات لگائیں گے۔ ذرا آپ بھی پڑھیے۔ منزل کوئی نہ جاد منزل نظر میں ہے، لیکن حیات ہے کہ مسلسل سفر میں ہے۔ وہ ایک طرف ہے کہ جس سے عبادت زندگی، کچھ سنگ در میں کچھ میرے سودائے سر میں ہے۔ جچتے نہیں بہشت کے منظر نگاہ میں، جس دن سے ایک بہشت خرامہ نظر میں ہے۔ جائے کہاں نکل کے تیری رہ گزر سے ہم، ہر منزل حیات تیری رہ گزر میں ہے۔ میری یہی خطا ہے بس اے اہل بت خدا، شمع حرم کا نور بھی میری نظر میں ہے۔ دوستو اس سوالات کا شاعر کے نزدیک زندگی کس سے عبارت ہے؟ ایک طرف سے ایک جنون سے، ایک درد سے، غم سے کیا ہے؟ ایک طرف سے ہے 101 کا ایک ہو جائے گا 100 کا۔ دیکھیے، تیرے شاعری کے پہلے مصرعے میں شاعر کس کے منظر نگاہ میں جچتے نہیں کہتے؟ بہشت کے منظر، باغوں کے منظر، پہاڑوں کے منظر، وادیوں کے منظر، کیا بہشت کے منظر کو کہا گیا ہے؟ یعنی شروع ہی میں یہ سب دیکھ سکتے ہیں دوستو، یہ بھی بہت ایزی ہے۔ دیکھیے بہشت کے منظر، ٹھیک ہے، یہ بہت ہی ایزی ہے۔ عبارت زندگی کیا کر سکتے میں، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے، بہت ہی ایزی ہے دوستو۔ آپ اس کو ذرا ایک مرتبہ اگر اچھے غور و فکر کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو آپ کا فوراً سوال کے جوابات آپ حل کریں گے۔ شاعر نے منزل حیات کس کو بتایا ہے؟ شاعر نے منزل حیات کس کو بتایا؟ اپنے محبوب کے حسن کو، اپنے محبوب کی رہ گزر کو، اپنے محبوب کے واقعے کو، اپنے محبوب کے سراپاک کو۔ کیا کس کو بتایا ہے؟ 102 کو دیکھے گا، اپنے محبوب کی رہ گزر کو بتایا ہے، اپنے محبوب کے رہ گزر کو بتایا ہے۔ شمع رحم کا نور بھی میری، اس میں خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ ذیل میں دیے گئے لفظوں میں صحیح لفظ کو بھریے۔ نظر، نگاہ، قدرت، فطرت، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 103 کا دوستو آپ کا ایک ہو جائے گا، کیا ہے؟ نظر ہو جائے گا۔ 104 کا دیکھیے گا، زندگی کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ زندگی کا دیکھیے گا دوستو کیا ہوگا؟ حیات تو ہوگا ہی نہیں، حیات کا مطلب ہی زندگی ہوتا ہے۔ وفات ہوگا ہی نہیں، حیات اور وفات یہ دونوں کیا ہے؟ ولوم ہے، ممات ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، زندگی کا متضاد یعنی الٹا دیکھیے گا تو موت ہوگا۔ دوستو اگلا دیکھتے ہیں، پہلے شعر کے دو سے مصرعے میں شاعر کس کو مسلسل سفر میں بتا رہا ہے؟ کیا ہے؟ پہلے شعر کو دوسرے مصرعے میں شاعر کس کو مسلسل سفر میں بتا رہا ہے؟ کائنات کو، حیات کو، ستاروں کو، سیاروں کو، کس کو بتا رہا ہے؟ 105 کا دیکھے گا، 105 کا دوستو آپ کا جو ہو جائے گا، حیات کو بتاتے ہیں۔ کس کو؟ حیات کو بتا رہے ہیں، 105 کا ہوگا۔ 106 کا ادھر دیکھتے ہیں، 106 آپ کا 106 درج ذیل میں سے کون؟ دوستو آپ کا یہاں سے 106 سے آپ کا پیڈاگوجی شروع ہو جا رہا ہے، یعنی یہاں سے پیڈاگوجی شروع ہوا ہے۔ آپ اس کو پڑھیے گا، پیڈاگوجی تھوڑا
غور سے پڑھیے گا, سمجھنے کی بالکل بہت ہی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کی سمجھ ہے تو آپ پیڈاگوجی بہت ہی آسان طریقے سے حل کر سکتے ہیں. 106 میں دیکھیے گا, درج ذیل میں سے کون قواعد پڑھانے کا ایک مؤثر طریقہ کیا ہے؟ قواعد پڑھانے کا ایک مؤثر طریقہ کون ہے دوستو؟ یعنی بہتر اچھا طریقہ کون ہے, مؤثر پاورفل طریقہ کون ہے؟ مثالوں کے ساتھ قواعد کے اصولوں کی تدریس, متن کا ترجمہ کرتے ہوئے قواعد کے اصولوں کی تدریس, قواعد کی مخصوص کتاب کی مدد سے قواعد کی تدریس, قواعد کے اصولوں کی دریافت میں معاون سیاق میں قواعد کی تدریس. آپ کا 106 کا دوستو ہو جائے گا, آپ کا 4 نمبر صحیح ہوگا, کیونکہ دیکھیے کیا ہے, قواعد کے اصولوں کی دریافت میں معاون سیاق میں قواعد کی تدریس. ٹھیک ہے, آپ کا آنسر کیا ہو جائے گا؟ 4 ایک دم کریکٹ ہو جائے گا. مثالوں کے ساتھ قواعد کے اصول, یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. متن کا ترجمہ کرتے ہوئے قواعد کے اصول, یہ بھی نہیں ہوگا. قواعد کے مخصوص کتابی, مخصوص ہی نہیں ہوگا. یہ آپ کا آنسر 4 ایک دم کریکٹ ہو جائے گا. اگلا دیکھتے ہیں 107 کا دیکھتے ہیں, سماجی تعامل کے تصور کا تعلق کس سے ہے؟ کیا ہے دوستو؟ آپ اس میں زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہیں. سماج جہاں آ گیا وہاں ڈائریکٹ وائی گوڈسکی لگا دیں گے. ہم لوگ آگے بڑھیں گے, ٹائم کو زیادہ ضائع نہیں کریں گے. آپ کو ٹائم کو زیادہ ضائع نہیں کرنا ہے, ڈائریکٹ ہم اس کو حل کر لیں گے. ٹھیک ہے, اگلا دیکھتے ہیں 108 کا دیکھے گا, درج ذیل میں سے کون بچوں کے زبان کے اقتباس میں معاون ہوتی ہے؟ اقتباس کو کہتے ہیں حاصل کرنا, اور اس کو ہندی میں کہتے ہیں ارجن کہا جاتا ہے اقتباس کو. آپ دیکھیے گا, اس کو پڑھیے گا. گھروں کا ماحول, یہاں سے بھی ایک سوالات پوچھا ہی جاتا ہے. اسی لیے دوستو اگر آپ نوٹس کو پڑھ لیتے ہیں یا اگر تھیوری کو ذرا سمجھ لیتے ہیں تو آپ کا یہاں سے سوال بن جائے گا. گھر کا ماحول, جہاں بچے کو زیادہ بولنے کی آزادی نہیں ہے. گھر اور اس کے آس پڑوس کی باتوں کو سننا, بچوں سے کہی ہوئی باتوں اور جملوں کو دہرانے کے لیے کہنا, دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنا, یعنی بچوں کے جو زبان کے اقتباس معاون ہے اس میں جو ہوگا دوستو, یہ گھر کا ماحول جہاں بچے کو زیادہ بولنے کی نہیں, یہاں دیکھیے نگیٹو ہے. گھر اس کے آس پڑوس بڑوں کی بات کو سننا, یہ بھی آپ کا نہیں ہوگا. بچوں سے کہیں ہوئی باتوں اور جملوں کو دہرانا تو غلط ہی ہے دوستو. آپ کا آنسر ایک دم صحیح ہو جائے گا. دوسروں بچوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ کھیلتا ہے بچوں, اسی سے زبان کو معاون یعنی حاصل کر لیتا ہے. 108 کا آنسر آپ کا 4 ایک دم کریکٹ ہو جائے گا. اگلا سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. 109 سوالات ہم لوگ پڑھیں گے. بچے فطری انداز میں زبان کا اقتباس کرتے ہیں, اگر انہیں روبرو کیا جائے کس طریقے سے بچے زبان فطری طریقے سے سیکھتا ہے؟ ایک وقت میں صرف ایک زبان کے ارد گرد موجود ایک سے زائد زبان کے صرف الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے کسی زبان کے قواعدی ساخت سے دوستو آپ کا 109 کا جو صحیح ہو جائے گا, ارد گرد موجود ایک سے زائد زبان سے بچے کیا کرتے ہیں؟ فطری طریقے سے زبان سیکھتے ہیں. جانتے ہیں کہ دوستو آپ کے محلے میں اگر الگ الگ لینگویج چلتا ہے, وہیں بچے دیکھ کر ہی اس کو سیکھ جاتے ہیں, فطری طریقے سے سیکھتے ہیں, بلکہ اس میں محنت نہیں کرتے ہیں. یہی آپ کا ہوگا, ارد گرد موجود ایک سے زائد زبان جو سیکھتے ہیں وہی آپ کا کیا فطری طریقے. ایک وقت میں صرف ایک ہی زبان نہیں سیکھتے ہیں, بچے الگ الگ بھی زبان سیکھ سکتے ہیں. ایک آپ کا کیا ہو گیا, آپ کا یہ آپ کا نگیٹو صرف کر دیا, یہ آپ کا نگیٹو ہے دوستو. اگلا سوالات کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں. 110 کے دیکھتے ہیں, درج ذیل میں سے کون متن کے مطالعے کے لیے سب سے اہم ہے؟ متن یعنی پڑھنا, روایت یعنی متن, اگر عبارت جس کو کہتے ہیں متن کرنا, معنی سمجھنا, آپ کے سب سے زیادہ اہم کون ہے؟ متن کے ہر لفظ کو پڑھنا, اعراب پر توجہ مرکوز کرنا, تحریر کردہ متن کے معنی معلوم کرنا, یعنی تحریر جو کردہ ہے اس کی متن کی عبارت کا کیا کرنا ہے؟ معنی سمجھنا ہے. یہی آپ کا صحیح ہو جائے گا, تحریر کردہ متن کے معنی معلوم کرنا. آنسر آپ کا 3 ایک دم صحیح ہو جائے گا. 11 میں جاتے ہیں, سوالات 11 کو پڑھتے ہیں. درج ذیل میں سے کون زبان کی تدریس کے مقاصد میں شامل نہیں ہے؟ یعنی زبان کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کون اس میں شامل نہیں ہے دوستو, وہی آپ کو بتانا ہے. یعنی نگیٹو پوچھا ہے, نہیں میں پوچھا ہے تو نہیں ہی سوالات دینا ہے. سمجھ کر پڑھنے کی صلاحیت, کوشش سے خیالات کا اظہار, جو کچھ سن رہے ہیں اس کو سمجھنے کی مہارت, مربوط تحریر کو فروغ دینا. یہ آپ کا 111 کا جو سوالات ہے, آپ اس میں دیکھیے گا دوستو, کوشش سے خیالات کا اظہار, یہی آپ کا نگیٹو ہے. یہ باقی سمجھ کر پڑھنے کی صلاحیت
ये भी आपका पॉजिटिव है। जो कुछ सुन रहे हैं उसको समझने की महारत, ये भी आपका पॉजिटिव है। और मरबूत तहरीर करदा फ़ुरूक, ये भी आपका पॉजिटिव में आता है। निगेटिव पूछा है इसमें, 112 का आंसर आपका 3 हो जाएगा। 111 का 3 हो जाएगा। 112 में देखते हैं, 112 में देखते हैं सौतियाती आहंगी। सौतियाती आहंगी ज़्यादातर मुताल्लिक़ होती है, सौतियाती आग ही ज़्यादातर मुताल्लिक़ होती है किससे? ज़्यादातर सौतुन मतलब होता है आवाज़ होता है। क्या होता है? सौतुन मतलब आवाज़ होता है। आवाज़ किसको कहते हैं? बोलने को भी आवाज़ कहा जाता है। सुनने की सलाहियत को, बोलने की सलाहियत को, पढ़ने की लिखने सलाहियत को, लिखने की सलाहियत को। दोस्तों आवाज़ जहाँ आ गया, लिखने की सलाहियत आपका नहीं होगा, पढ़ने की सलाहियत भी नहीं होगा, न लिखना आएगा न पढ़ना आएगा। आपका 2 बज गया सुनने की सलाहियत, बल्कि सुनना की भी नहीं आएगा। सौत मतलब आवाज़ होता है। आवाज़ तो बोलने की सलाहियत में आएगा। किस में आएगा? बोलने की सलाहियत में आएगा। आंसर 112 का आपका जो है 2 करेक्ट हो जाएगा। 113 का देखते हैं। नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में ज़बान की कुदरती महारत होती है। यानी उससे क्या मतलब है? यानी नोम चॉम्स्की का क्या मतलब? बच्चे का जो महारत होती है कैसा होता है? कुदरती महारत होता है। बच्चे अपने आप ज़बान को सीख जाते हैं, अर्जन कर जाते हैं। गांव, मोहल्ले और समाज में देखकर, सुन करके सीख जाते हैं, बल्कि उसमें कोशिश नहीं करना पड़ता है, अपने आप फितरी तरीके से सीखते हैं। नोम चॉम्स्की का क्या करना? इक़्तिबास की, नकल की, तब्दीली की, तर्जुमा की। तर्जुमा का नहीं होगा, तब्दीली का नहीं होगा। 2 आपका बचा हुआ है। 113 का आप देख सकते हैं। 113 का आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इक़्तिबास की क्या हो जाएगा? ज़बान कुदरती तरीके से कैसे होगा? इक़्तिबास ही होगा। इक़्तिबास मतलब हासिल करना। 114 का देखिएगा। ज़बान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए। कैसे? नकल के ज़रिए ज़बान की तदरीस की महारत होगा। ज़बान जो बोलते हैं, तदरीस है, उसमें महारत कैसे पैदा होगा? अगर आप नकल करेंगे उससे होगा, अलग थलग किसी को बैठा देंगे उससे होगा नहीं। आपका एक मरबूत अंदाज में, एक ही अंदाज में देखिएगा, ये भी नहीं होगा। तफसीली वजाहत के ज़रिए ज़बान की महारत में पैदा होगी। यानी उसको वजाहत करना, उसको खोल खोल करके बातें करना, उसी पर आपकी ज़बान की महारत बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। 114 का आंसर 3 आपका सही हो जाएगा। 115 का देखिएगा। वस्तानी इब्तदाई दर्जात के तलबा को कुछ तस्वीर बनाने और उनमें रंग भरने के लिए कहती है। क्या है? देखिए, वस्तानी इब्तदाई दर्जात यानी इब्तदाई दर्जा प्राथमिक बच्चे को, दर्जात के तलबा को कुछ तस्वीर बनाने यानी फ़ोटो बनाने, उसमें रंग भरने, अलग अलग रंग भरने के लिए कहती है। इस तरह वह क्या करती है? क्लास में खामोशी बनाए रखने के लिए तलबा को मसरूफ़ रखती है। मसरूफ़ तसरुफ़ नहीं आएगा दोस्तों, ये आपका एकदम निगेटिव हो जाएगा। लुत्फ़ हुर्की की महारत को फ़रोग़ दे रही है। उभरते फ़नकार बच्चों को मौका फराहम कर रही है। बच्चों को सिर्फ काम में शामिल कर रही है, ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा। आपका 2 बचा, 2 और 3, इसमें आप लगा सकते हैं। इसमें ज़्यादा सबसे बेहतर कौन सा होगा दोस्तों? लतीफ़ हुर्की महारत को फ़रोग़ दे रही है। क्या है? बच्चों कुछ तस्वीर और फ़ोटो कुछ बना रहे हैं, तो उससे क्या होगा? यानी फ़ाइल यानी हुर्की मतलब क्या है? हरकत कर रहे हैं, बल्कि क्या करते हैं कि उसमें आपका हरकत हुर्की में, फ़ोटो में या किसी चीज़ में या खेल कूद में, अलग अलग चीज़ों में हुर्की अगर आ गया तो दोस्तों हुर्की में आपका हो जाएगा। यानी उसमें एक्टिविटी होता है, का हाथों से काम होता है और क्रियाकलाप होता है। इसी से आपका दोस्तों लतीफ़ हुर्की की महारत फ़रोग़ दे रहे हैं। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। 116 का देखिएगा। दर्ज झेल में से कौन से अमल ज़बान के बोलने की महारत को फ़रोग़ देने में सबसे ज़्यादा मुआविन है? यानी ज़बान के महारत में जानते हैं सबसे ज़्यादा महारत पैदा करने के लिए क्या है, किसमें है? क्वेश्चन, इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर नज़मों को पढ़ना, रोल प्ले में शिरकत, दरसी किताब के किसी सबक का उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर पढ़ना नहीं होगा, उस्ताद के बाद पर नज़मों के सही। इसमें दोस्तों आपका जो सही हो जाएगा रोल प्ले, यानी रोल प्ले में शिरकत करना। इससे क्या होगा? ज़बान में महारत फ़रोग़ होगा, महारत हासिल होगी। किस में होगा? रोल प्ले में। तीसरी जमात का उस्ताद तलबा से
कहानी को इस तरतीब से बयान करने के लिए कहता है। तीसरी जमात के उस्ताद क्या है, टीचर क्या है, क्या कहता है, कहानी को इस तरीके तरकीब से बयान करने के लिए कहता है कि जैसा कि सबक में दिया गया है, ये सरगर्मी मुआविन होगी। क्या चीज़ में मुआविन होगी? यानी कहानी सुनाने और उसको कहानी सुनाने उस तरतीब से बयान करने के लिए भी कहता है। क्या होगा दोस्तों? इबारत को समझ कर पढ़ने में, काबिल फ़हम मवाद में, लिखने की महारत के इजाफे में, तलबा की बात करने के वक्त के इजाफे में, ये भी आपका नहीं होगा आंसर। यह भी आपका नहीं होगा दोस्तों, ये भी आपका नहीं होगा। 117 का देखिएगा, ये भी लिखने की महारत कहाँ से हो जाएगा दोस्तों? नहीं होगा। काबिल फ़हम मवाद, ये काबिल फ़हम और इबारत को समझ कर पढ़े, ये आपका सही होगा। करेक्ट इबारत को समझ करके पढ़िएगा। कब बयान करेगा? तरतीब, उस तरतीब से बयान करेगा कहते जब सबक में दिया गया है सरगर्मी मुआविन होते। तरतीब यानी इबारत को समझ कर पढ़ना है, समझ इन आधार पर आप पढ़ाई करना है, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस पर आप समझ लीजिएगा। 118 का देखिएगा, दूसरी जमात का उस्ताद क्लासरूम में रखी हुई चीज़ों पर क्या है? चीज़ों पर पर्चियाँ चस्पा कर देता है। क्या है? पर्चियाँ चस्पा कर देती है क्लासरूम में, ठीक है। तहरीर करदा लफ्ज़ असल चीज़ से मरबूत करने में तलबा की मदद करती है। मरबूत मतलब मिला जुला, उससे मिलना जो मिला हुआ मरबूत करती है, पकड़। इस तरह की सरगर्मियाँ तलबा की सलाहियत को निखारने में भी मुआविन होती है। दोस्तों कवाइद तहरीरी महारत, ज़ख़ीरे अल्फाज, लिखावट। यानी लिखावट तो होगा नहीं दोस्तों, कवाइद भी नहीं होगा, यानी जो वो चस्पा कर दे तहरीरी महारत है। क्या बच्चे को ज़ख़ीरे अल्फाज की क्या है दोस्तों? ज़ख़ीरे अल्फाज, बहुत सारे वर्ड, बहुत सारे अल्फाज उसमें शामिल कर रहे हैं, उसी से बच्चे क्या करेंगे? सीखेंगे। 119 का देखेगा, दर्ज झेल में से कौन बच्चे की लिसानी क्या है? लिसानी महारत, ज़बान की महारत। लिसानी महारत मतलब, लिसान मतलब होता है ज़बान, होता है महारत मतलब क्या होता है? ज़बान की महारत। लिसानी महारत को जांच में कम मुअस्सिर, कम को कहा गया दोस्तों कि ये कहानी सुनाना ये भी ज़बान के लिए मुअस्सिर होगा, कहानी लिखाना ये भी होगा, किसी हादसे को बयान या इमला। जल्द से जल्द इसको बताइएगा दोस्तों। आपका जो सही होगा, कम कहा गया है तो कम जो होगा इमला होगा। ज़बान की महारत के लिए इमला कम होगा, क्योंकि वो इमला तो लिखने से आता है और बोलने से वो सब नहीं आता, सुनने से वो सब नहीं आता है। 120 देखिएगा, दर्ज झेल में से कौन सा सवाल बच्चों की ज़बान की सलाहियत, बच्चों की जो है नॉलेज, ज़बान की सलाहियत के इजाफे में सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा मुआविन है, मददगार है, सबसे ज़्यादा सहायक है। ठीक है दोस्तों, अपनी पसंदीदा किताबों में से किसी एक नाम, देखिए किसी विषय एक आ गया, वहाँ थोड़ा निगेटिव ही में शुमार कीजिएगा, ठीक है। नंबर 2, लफ्ज़ तरजीह के इस्तेमाल से एक जगह एक जुमला बनाना, ये भी आपका क्या है? एक ही चीज़ों को बारे में कहा जा रहा है। नंबर 3, अपने और अपनी वालिदा के दरमियान होने वाला मुकालमा तहरीर करना। नंबर 4, मुताला करदा नज़्म के खालिक का नाम लिखना। 120 का दोस्तों अब तक दोस्तों क्या हो जाएगा? अपने और अपने वालिदा के दरमियान होने वाला मुकालमा तहरीर करना। दोस्तों बच्चे अपने और मुकालमा, माँ बाप के दरमियान जो चीज़ें होती है उस मुकालमे में तहरीर करना। तो दोस्तों इससे पता ये चला कि बच्चे अपने जो ख़यालात, अपने जज्बात है और अपने अल्फाजों में जितना भी हो सकता है बयान करेंगे उसी को, यानी बिल्कुल उसमें आज़ादी है और उसमें मौका फराहम किया जा रहा है, इसलिए आपका आंसर आपका 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 120 तक आपका सवालात हल हो गया है। अब लैंग्वेज 2 यानी लैंग्वेज 2, अगर उर्दू लैंग्वेज 2 जो सेलेक्ट करेगा वहाँ 121 उसको हल करना पड़ेगा। डायरेक्ट हम लोग सवालात की तरफ बढ़ते हैं, डायरेक्ट हम लोग सवालात की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है? इसको पढ़ना है, इसको गौर से पढ़ना है। एक मरतबा पढ़ने के बाद आंसर फ़ौरन मिल जाए, दोबारा इधर आने की ज़रूरत भी ना पड़े, बिल्कुल इतना गौर से पढ़ना है। रियासत केरला कर्नाटक के जुनूब मगरब में वाक़ है। इस रियासत से कर्नाटक और तमिलनाडु की सरहदें मिलती है। केरला में चारों तरफ नारियल के दरख्त ही दरख्त नज़र आते हैं। केरला के माना नारियल का घर, यही वजह है कि उस रियासत का नाम केरला पड़ा। यहाँ की ज़बान मलयालम है।
कत्था कली यहाँ का मशहूर नाच है और ओणम यहाँ का ख़ास त्यौहार है। जनूबी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश केरला ही में होती है। दोस्तों इसको थोड़ा क्या करेंगे, गौर से पढ़ेंगे केरला के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है। पॉइंट को ज़रा आप क्या करते हैं, क्लिक भी देखें, ये क्लिक भी कर सकते हैं आप इसको, मलयालम ये भी आपको क्लिक कर सकते हैं, इस तरीके से उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, गर्मी भी पड़ती है। केरला में समुद्र जगह जगह अंदर तक चला गया और यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। केरला के हरे भरे जंगल देखने के काबिल है। उन जंगलों में हाथियों के झुंड नज़र आते हैं। क्या है, जंगल में हाथियों झुंड के झुंड नज़र आते हैं। उसमें रोज़ वड और सागवान के दरख्त भी पाए जाते हैं। रोज और सागवान के दरख्त भी पाए जाते हैं। ये आपका हो गया दोस्तों। डायरेक्ट हम लोग इक़्तिबास तो पढ़ लिए हैं, अब सवालात हल करेंगे। सवालात को क्या करेंगे, डायरेक्ट हल करेंगे दोस्तों। आप इसको बिल्कुल क्या करेंगे, टाइम ज़ाय नहीं करेंगे, थोड़ा जल्द से जल्द इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट देखिएगा, केरला में चारों तरफ कौन से दरख्त नज़र आते हैं? केले के दरख्त, नारियल के दरख्त, केले के। देखिए इसको आप डायरेक्ट क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। केले का दरख्त नज़र आते हैं। क्या चीज़ का? केले का दरख्त नज़र आते हैं। क्या है अच्छा, केरल क्या है, नारियल के दरख्त। देखिए सॉरी, इधर आपका देखा हुआ है। रियासत केरला कर्नाटक के जनूबी मगरब में वाक़ इस रियासत के कर्नाटक और तमिलनाडु केरला में चारों तरफ नारियल के दरख्त नज़र आते हैं। क्या है, चारों तरफ नारियल के क्या दरख्त नज़र आते हैं। आंसर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं 122। केरला का खास त्यौहार कौन सा है? पोंगल, ओणम है। क्या है? ओणम आपका केरला का खास त्यौहार है। ओणम इधर आप पढ़े थे, क्या है? ओणम केरला का खास त्यौहार है। किधर दिखा देता हूँ, ज़रा उसको भी दिखा देता हूँ। ओणम देखिए यहाँ पर है, ओणम यहाँ का खास त्यौहार है। देखिए क्या है, ओणम यहाँ के खास त्यौहार। केरला का खास त्यौहार कौन सा है? ओणम। ओणम केरला का खास त्यौहार है। केरला में ज़्यादातर इलाका कैसा है? पहाड़ी है, मैदानी है, पथरीला है, बंजर है। 123 का दोस्तों देखिएगा, 123 का आपका जो सही हो जाएगा वो आपका सही होगा, एक होगा। क्या है? पहाड़ी इलाका है। केरला में ज़्यादातर इलाका कैसा है? पहाड़ी इलाका। इसमें देखिए यहाँ का ज़्यादातर इलाका पहाड़ी है। ठीक है, अगला सवाल है, हम लोग पढ़ते हैं 124 को पढ़ते हैं। केरला के हरे भरे जंगलों में किसके झुंड नज़र आते थे? किसके झुंड नज़र आते थे दोस्तों? टुड्डियों के, बंदरों के झुंड, हाथियों के झुंड नज़र आते थे। इसको भी आपको दिखा देते हैं। इधर देखिएगा, हाथियों के झुंड नज़र आते थे। अगला सवालात हम लोग पढ़ते हैं 25 के। केरला के जंगलों में कौन से दरख्त पाए जाते हैं? ठीक है, 25 नंबर को पढ़ेंगे। रोज़र और सागवान के। क्या है? रोज़र और सागवान के, ये आप इधर पढ़ सकते हैं। इधर शुरू ही में देखिए, इधर आपका दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट आप मिला सकते हैं। अगला सवालात की तरफ 126 के सवालात की तरफ। सराहत की जमा क्या होता है? सरहद, सराहद, सराहदों, सराहद। 126 का दोस्तों देखिएगा, सरहद की जमा क्या होता है? सरहद होता है। 126 का सरहद की जमा क्या होता है? सरहद होता है। ख़ास का मुतज़ाद को कहते हैं उल्टा, उल्टा को कहते हैं ख़ास का जो होगा दोस्तों आम होगा। इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। रियासत केरला से किन 2 रियासतों की सरहद मिलती है? कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु, उड़ीसा और चेन्नई, आसाम और मणिपुर, आंध्र प्रदेश और बंगाल। दोस्तों कर्नाटक और तमिलनाडु 2 की मिलती है, उसमें आप पढ़ चुके थे। अगला देखते हैं 100 हिदायत। नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। 129 से लेकर 135 तक। ठीक है, इसको भी आप पढ़िए। बागबानी शुरू करने के लिए सबसे अच्छा मौसम बरसता है। बरसात के मौसम में ज़मीन नम रहती है। गर्मी के मौसम में ज़मीन सूख जाती है और सूखी ज़मीन पर पौधा ज़िंदा नहीं रह सकता। पौधों के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है: ज़मीन या मिट्टी, दूसरी चीज़ पानी और तीसरी चीज़ धूप और रोशनी। बागबानी आराइश और ज़बाइश का काम है। हमेशा क्यारियाँ सीधी और सलीके से बनानी चाहिए। बागबानी करते वक्त
दो बातों का हमेशा ख्याल रखना ज़रूरी है। पहला ये कि थोड़ा थोड़ा काम रोज़ाना करना बेहतर होता है। दूसरा यह है कि बाग की हिफाजत अच्छी तरह करें। ठीक है। 129 का देखिएगा, कैसी ज़बान पर पौधा ज़िंदा नहीं रह सकता। क्या है? कैसी ज़बान पर पौधा ज़िंदा नहीं रह सकता, ये आपका देख सकते हैं। कैसी ज़बान पर पौधा ज़िंदा नहीं रह सकता, कैसी ज़मीन पर कैसी ज़मीन पर पौधा ज़िंदा नहीं रह सकता, सूखी ज़मीन पर, रेतीली ज़मीन पर, पथरीली ज़मीन पर, बंजर ज़मीन पर। ये आपका इसमें जो इक़्तिबास में दिया हुआ है 129 का देखिएगा। 129 का दोस्तों एक होगा सूखी ज़मीन। इधर आप पढ़े थे, क्या है? सूखी ज़मीन पर पौधा नहीं रह सकता। इधर देखिए, सूखी ज़मीन पर पौधा नहीं रह सकता। डायरेक्ट हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। 130 का देखिएगा, बागबानी करते वक्त हमेशा क्यारियाँ कैसी बनानी चाहिए? थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनानी चाहिए, बहुत करीब करीब बनानी चाहिए, टेढ़ी बनानी चाहिए, सीधी और सलीके से बननी चाहिए। 130 का 4 आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 131 का, बागबानी किस तरह का काम है? मेहनत से भरपूर काम है, मुश्किल और सख्त का काम है, आराइश और ज़बाइश का काम है, सजावट और मीनाकारी का काम है। दोस्तों अगर आप देखते हैं 131 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 131 का एकदम 3 हो जाएगा। क्या? आराइश और ज़बाइश का काम। क्या है? आराइश और ज़बाइश का काम होगा। बागबानी करते वक्त रोज़ाना थोड़ा काम करने के अलावा दूसरा काम क्या करना चाहिए? बाग की हिफाजत अच्छी तरह करनी चाहिए, बाग में दवाई छिड़कनी चाहिए, बाग में खाद अच्छी तरह डालनी चाहिए, परिंदों से बचाना चाहिए। यह आपका एकदम सही हो जाएगा 32 के। बाग की हिफाजत अच्छी तरह करनी चाहिए। 133 का देखिएगा, ख्याल की जमा क्या? ख्यालात, ख्यालातें, ख्यालातें, यह आपका होगा ख्यालात हो जाएगा। 134 का देखिएगा, धूप का मुतज़ाद क्या है? मुतज़ाद मतलब होता है उल्टा। धूप तो जानते ही है। धूप का मुतज़ाद अंधेरा तो नहीं होगा, साया भी नहीं होगा, छाया भी नहीं होगा। धूप का क्या होगा? छाँव क्या होगा? 134 का देखिएगा, क्या? छाँव होगा। छाया जिसको बोलते हैं, ये पेड़ या किसी दरख्त के नीचे देखते कितना छाया रहता है इसका, वही आपका हो गया धूप। और क्या मुतज़ाद होगा? छाया। ज़मीन किस मौसम में नम रहती है? बाहर के मौसम में, बरसात के मौसम में, सर्दी के मौसम में, पतझड़ के मौसम में। ज़मीन जो है किसके ज़्यादा मौसम में आपका क्या रहता है? नम रहता है दोस्तों। क्या? ज़मीन किस मौसम में नम? बरसात के मौसम में। किस? सर्दी के मौसम में भी नहीं, बरसात के मौसम में। 135 का आपका आंसर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यानी यहाँ तक आपका इक़्तिबास हल हो गया है। अब हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे? पैडागोजी की तरफ बढ़ते हैं। इसको ज़रा गौर से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ठीक है। क्या करना है? सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन होगा उसको चूज़ करना है। दर्ज झेल में से कौन ज़बान के इक़्तिबास में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है? ज़बान जो बच्चे हासिल करते हैं, लैंग्वेज जो बच्चे हासिल करते हैं, सबसे अहम किरदार कौन अदा करता है? सबसे महत्वपूर्ण अहम किरदार कौन अदा करता है? इसी आपको लगाना है। घर, स्कूल, मीडिया, उस्ताद। ज़बान जो इक़्तिबास करते हैं, इक़्तिबास मतलब हासिल करना, अर्जन जिसको कहा जाता है। यहाँ से एक ही सवाल पूछा ही जाता है आपको। इसको ज़रा डिटेल में पढ़ लेना है और उसको ज़्यादा कंसेप्ट समझने की कोशिश करना है। इसको दोस्तों देखिएगा, इक़्तिबास आपका इक़्तिबास खुद ब खुद हासिल कर लेता तो घर होगा। उस्ताद तो क्या करता है? उसमें सीखना पड़ता, प्रयास करना पड़ता है। स्कूल, मीडिया, ये सब भी नहीं होगा। आपका आंसर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। 137 का देखिएगा, कवाइद के उसूलों को याद करने उस तरीक़ेकार की बुनियाद क्या है? साख्ती तरीक़ेकार, रास्त तरीक़ेकार, कवाइद के वज़ाहती तरीक़ेकार या फितरी तरीक़ेकार। 137 का आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। कवाइद का वज़ाहती तरीक़ेकार, इसमें आप कवाइद के उसूलों को याद करने इस तरीक़ेकार को, जब कवाइद को याद कर ही रहे हैं, देखिए इसमें भी कवाइद नहीं है, इसमें भी नहीं है, फितरी तरीक़ा, रास्त तरीक़ा ये भी नहीं है। फितरी ज़बान और रास्त ज़बान यानी किसी लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज को सीखना और फितरी तरीक़ा खुद ब खुद जो ज़बान सीखी जाती है। कवाइद का वज़ाहती तरीक़ा होगा, क्योंकि कवाइद के उसूलों को याद ही करनी पड़ रही है, तो कवाइद का वज़ाहती तरीक़ा होगा। ज़बान 138 कभी कभी दिमाग अगर आप अच्छे तरीक़े से यूज़ कीजिएगा तो सवाल के जो है सवालात के ही अंदर में जवाबात
घुसे हुए रहते हैं उसको निकालना है। ज़बान की आमोजिश में कोई अहमियत नहीं होती है। क्या है? ज़बान की आमोजिश में कोई अहमियत नहीं होती है। किससे अहमियत नहीं होती है? तरतीब से, ख़ुद एतमादी से, आमोजिश रवैये से, तर्जमे की। यानी तरतीब से भी तो होती है, ख़ुद एतमादी भी तो होती है, आमोजिश रवैये भी होती है, तर्जमे की से जो है ज़बान की अहमियत नहीं होती है। नहीं पूछा गया था। आपका 39 का आंसर 4 एकदम सही हो जाएगा। 39 38 का आंसर 4 हो जाएगा। 39 सवालात हम लोग पढ़ेंगे। आप बच्चों को लिखने के बारे में बताने के लिए एक उस्ताद की हैसियत से क्या करेंगे? यानी आप बच्चों को लिखाने के लिए आप उस्ताद की जो हैसियत रखते हैं, टीचर की हैसियत रखते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? वही करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? बच्चों से उस ज़बान के हरूफ तहजी लिखवाने के लिए कहेंगे। बच्चों को अपने ख़यालात कलमबंद करने का मौका फराहम किया जाएगा। बच्चों से पहले याद, देखिए याद आ गया, नेगेटिव कर दीजिए। बच्चों के तख्ते से ऐसे हरूफ को लिखने का मौका फराहम करना चाहिए। यह आपका 3 ऑप्शन है, एक तो कट ही गया है। अब बच्चों को लिखने के बारे में बताने के लिए एक उस्ताद के हैसियत से क्या करेंगे दोस्तों? क्या करेंगे? ये आपका जो दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, बच्चों से उस ज़बान के हरूफ तहजी लिखने के लिए सिर्फ हरूफ तहजी की भाई दूसरी चीज़ों पर तो भी बात होगी। हरूफ तहजी आपके लिमिट कर दिया, ये भी नहीं होगा। बच्चों को अपने ख़यालात कलमबंद करने का मौका फराहम किया जाए। यानी बच्चों को अपने ख़यालात आ रहे जो जज्बात है, अंदर की बातें हैं, वो अपने कलम से क्या करेंगे? वो अपने कलम से कलम बंद करेंगे, अपने कलम से लिखेंगे। उसी को कहा जाता है। ये आपका एकदम करेक्ट हो गया दोस्तों। अगला देखते हैं। बच्चों से पहले ये तो नेगेटिव होगा। बच्चों को तख्ते स्याह से हरूफ को लिखने का मौका, यानी सिर्फ हरूफ ही क्यों होगा दोस्तों? यह आपका जो सही होगा, सबसे बेहतर ऑप्शन है। बच्चों को अपने ख़यालात कलमबंद करने का, जहाँ भी बच्चे को प्रोजेक्ट किया जाए, बच्चे को क्रियाकलाप, बच्चे को लिखने की सहूलत दी जाए, बच्चे को पढ़ने की सहूलत दी जाए, वो ऑप्शन एकदम आपका सही हो जाएगा। उसमें आंख बंद करके आपको लगा देना है, इधर उधर की देखना नहीं, इधर उधर की बातें नहीं समझना है। ठीक है, अगला देखते हैं। 140 का देखिएगा। 140 बच्चों के लिए तदरीसी आमूजिशी मवाद। क्या है? तो तदरीसी आमूजिशी मवाद, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? TLM के इंतखाब में सबसे अहम नुक्ता क्या? सबसे अहम जो नुक्ता है उसको हम लोग जानेंगे। उसे करीबी बाज़ार में दस्तयाब होना चाहिए, उसे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, उसे सिर्फ तलबा का तैयार करदा होना चाहिए, उसे सियाक के मुताबिक और मरबूत अंदाज में इस्तेमाल होने वाली चाहिए। दोस्तों इसमें आपका जो होगा उसे करीबी बाज़ार, यानी दोस्तों सिर्फ बाज़ार में ही क्या होगा? TLM आप जो बनाइएगा बाज़ार ही के लिए है नहीं दोस्तों, उससे महंगा होना चाहिए, इससे भी कोई लेना नहीं है। उसे सिर्फ देखिए सिर्फ ही कर दिया, ये नहीं होगा। दोनों TLM जो दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। उसे सियाक के मुताबिक मरबूत, यानी सबक के मुताबिक जो है उसको क्या करना है? मरबूत, अच्छे ढंग से बनाना है TLM को, और अच्छे से इस्तेमाल कराना। ये आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। 4 आंसर आपका सही हो जाएगा और बाकी 3 आपका निगेटिव है। आपका देखिएगा दोस्तों 141 का सवाल हम लोग पढ़ेंगे। नीचे बढ़ते हैं। दूसरी जमात के चंद तलबा को बाज़ सौतियों मतलब आवाज़, सौतियों की अदायगी में परेशानी होती है। पढ़ने की अदायगी में, यानी बोलने की अदायगी में परेशानी होती है। तलबा की उस परेशानी को हल करने के लिए सबसे मुअस्सिर हिकमत अमली क्या है? सबसे मुअस्सिर हिकमत अमली क्या है? इंसानी मुँह के एक मॉडल के इस्तेमाल से ख़ास सौतियों की हामिल अदायगी के नुक्तों को पेश करना चाहिए। उससे हम काफ़ी और लफ्ज़ों और पूरे लफ्ज़ों में सौतियों की तख्लीक और शनाख्तगी जैसी जोड़ा सरगर्मी का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। मतन को आवाज़ बुलंद पढ़ना और श्रुतियों को नुमाया करके इसके इस्तेमाल की वजाहत करना चाहिए। तलबा को मशक दी जाए ताकि उसे बार बार गलत है दोहराना परेशान। ये आपका निगेटिव हो गया। आपका जो दोस्तों सही होगा आंसर आपका 3 ही करेक्ट हो जाएगा। कि क्या होगा? 3 ही आपके, थोड़ा इसको छोटा कर देते थे ताकि आपको 4 ऑप्शन नज़र आए। 4 ऑप्शन आपका नज़र आए दोस्तों। यह आपका जो सही होगा उसे, ठीक है दोस्तों, आंसर 3 आपका यहाँ एकदम क्या हो जाएगा? करेक्ट। 141 के दोस्तों 3 ही ज़्यादा क्या है? ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यहाँ ऑफिशियल आंसर की जो दिया हुआ है उसे हम काफ़िया लफ्ज़ और पूरे लफ्ज़ों में सौतियों की तख्लीक, यानी हम काफ़िया लफ्ज़ और पूरे लफ्ज़ों सौतियों की तख्लीक और शनाख्त जैसे, ये आपका जो होगा दोस्तों
दो आपका 141 का सही हो जाएगा ऑफिशियल, यानी 3 भी थोड़ा सही ही है, लेकिन ऑफिशियल जो आंसर किया गया है उसी को हम लोग मानते हैं। आंसर आपका 2 एकदम करेक्ट हो गया। 142 के सवालात की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए, तदरीस के किस तरीक़े में पहले क़वाइद के उसूलों यानी पहले क़वाइद के उसूलों पर तवज्जो दी जाती है, फिर उसी बुनियाद पर बहुत सी मिसालें पेश की जाती हैं। उसी बुनियाद पर बहुत सी मिसालें पेश की जाती हैं, यानी क़वाइद के तरीक़े पहले क़वाइद रटाया जाता है, उसके बाद उसकी मिसालें दी जाती है। ये कौन से तरीक़े में आता है? 142 का देखिएगा दोस्तों, इसमें हर मर्तबा सवालात पूछा ही जाता है, हर मर्तबा सवालात पूछा ही जाता है। एक होता है आगमन विधि और एक होता है निगमन विधि। आगमन विधि उसको कहते हैं जो उदाहरण से नियम की तरफ बढ़ते हैं, उदाहरण से नियम की तरफ पहले उदाहरण देते हैं, उसके बाद क़वाइद का नियम बताते हैं। ठीक है, ये आगमन किसको कहते हैं? इस्तिक़राई तरीक़ा को क्या कहते हैं? आगमन विधि कहा जाता है। इस्तिख़राजी तरीक़ा निगमन विधि क्या है? निगमन पहले नियम। दोस्तों ट्रिक से याद रखिएगा इसको, आपका एक नंबर कट ही नहीं होने वाला है। निगमन विधि नियम, पहले नियम यानी पहले क़वाइद के तरीक़ा रटाया जाता है, उसके बाद फिर मिसाल दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों क्या दोस्तों समझिए इसको, तदरीस के किस तरीक़े में पहले क़वाइद के उसूल यानी क़वाइद के तरीक़ा और फिर तवज्जो दीजिए, फिर उसी बुनियाद पर बहुत सी मिसालें दी जाती है। दोस्तों इसका आपका जो आंसर होगा, आंसर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। 143 देखिएगा, आमुज़गार किस तरह ज़बान का इक़्तिबास करता है? आमुज़गार यानी सीखने वाला, आमुज़गार को किसको कहते हैं? सीखने वाले को आमुज़गार कहते हैं। फितरी ताअम्मुल माहौल में ज़बान को मदद कर ज़बान के साख्त का तज्ज़िया करके, ज़बान के अदब का मुताला करके, ज़बान की बोलने वाले की सकाफ़त का मुताला करके क्या करते हैं? ज़बान हासिल करते हैं। दोस्तों 143 का अगर देखिएगा, बहुत ही ईजी है दोस्तों। हासिल जहाँ भी आ गया, फितरी ताअम्मुल, ये सब आपको दोस्तिगा 99 पर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। 144 देखिएगा, दर्ज झैल में से कौन लतीफ़ हुर्की महारत को फ़रोग़ देने की मिसाल है? लतीफ़ महारत, हुर्की मतलब कि दोस्तों आप ये सवालात भी बहुत ज़्यादा हुर्की आप इसको समझिएगा। हुर्की को कहते हैं हरकत देने वाला, यानी हरकत करने वाला, हरकत देने वाला, हुर्की उसी को कहते हैं। हरकत किससे होगा? कोई चीज़ उठाएंगे, बैठाएंगे, खिलेंगे, पिलेंगे, दौड़ेंगे, क्रियाकलाप करेंगे, ये सब चीज़ आपका हुर्की में आएगा। इसलिए आपको समझ में आ गया होगा, अब इसको लगाइएगा। चढ़ना, उछलना, कूदना, लिखना या पढ़ना, यानी दोस्तों ज़्यादा हरकत जिसमें किया जा रहा है। देखिए पढ़ना तो इसमें तो पढ़ ले हैं, लिखना ये भी तो नहीं होगा, पर चढ़ना ये भी नहीं, यानी उछलना कूदना जो है दोस्तों ये आपका हुर्की में आएगा। आंसर आपका 144 का जो है आंसर 2 एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। यानी हुर्की आपको याद करना जिसमें क्रियाकलाप, जिसमें ज़्यादा क्या होता है? उछल कूद होता है, खेल कूद होता है, तमाम फुटबॉल खेलना, ये खेलना, वो खेलना, तमाम चीज़ों खेलों में जो आएगा वो आपका क्या आएगा? किस में आएगा दोस्तों? वो आपका आएगा क्या, किस में आएगा? हुर्की में आएगा, लतीफ़ हुर्की में आएगा। 145 सवालात को हम लोग पढ़ेंगे, ज़रा जूम कर देते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं। उस्ताद के ज़रिए पूछे गए सवालात में से कौन सवाल क्लास रूम में कसीर लिसानियत को फ़रोग़ देता है? यानी उस्ताद के ज़रिए जो बच्चे पूछे गए सवालात हैं, कौन सवाल क्लास रूम में कसीर लिसानियत को फ़रोग़ देते हैं? दोस्तों एक गुब्बारा उड़कर कितनी ऊंचाई तक बढ़ जा सकता है? सब्जियों के नाम अपनी ज़बान में लिखें। क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है? क्या तुम ख़त लिख चुके हो? यानी दोस्तों जहाँ भी बच्चे को खुद क्रियाकलाप नज़र आ रहा है वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सब्जियों के नाम पर अपनी ज़बान लिखें, यानी सब्जियों के जो नाम है अपनी ज़बान में लिखेंगे तो उसके बारे में आप डिटेल जानकारी देंगे, उसके बारे में तमाम जो बारीकी चीज़ें हैं उसको आप लिख डालेंगे, वही आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपनी ज़बानों में जो लिखना है वही आपका हो जाएगा कसीर लिसानियत, यानी ज़्यादा लिसानों में शुमार किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ज़बान उसमें अल्फाज
استعمال کیا جائے اپنے اعتبار سے۔ 146 ابتدائی درجات میں نظموں کو پڑھانا چاہیے۔ ابتدائی درجات شروعاتی درجات میں نظموں کو پڑھانا چاہیے کیونکہ یہ دیکھیے گا آموزگاروں کو ادب زبان بولنے کا موقع فراہم کرتی ہے، آموزگاروں کو نظم و ضبط میں رکھتی ہے۔ نظم و ضبط یہ سب آپ کا نگیٹو ہے۔ آموزگاروں کو ادب زبان کے قواعد کی آموزش میں معاون ہوتی ہے، مشکل الفاظ کی وضاحت اور پھر جملہ سازی میں آموزگاروں کی مدد کرتی ہے۔ 146 کا دیکھیے گا دوستو، 146 کا آپ کا ایک دم کریکٹ ہو جائے گا، 146 کا ایک دم کریکٹ ہو جائے گا، آنسر ایک ہی ہو جائے گا۔ آموزگاروں کو ادب زبان بولنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ موقع بھی جہاں آ جاتا ہے وہ بھی آپ کا زیادہ تر 99% صحیح ہونے کا، اگر کچھ بھی نہیں جان رہے تو آپ ڈائریکٹ اس کو لگا دیجیے گا تب بھی صحیح ہو جائے گا۔ لیکن کنسیپٹ جاننا بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، کبھی کبھی نہیں کام کرتا ہے، اسی لیے آپ کو ذرا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ایک استاذ کلاس روم میں سننے کی سرگرمی کیا ہے؟ سننے کی سرگرمی کو انجام دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اس عمل میں آموزگاروں کو شامل کے لیے چند غور و خوض کی سرگرمیوں کاموں کا منصوبہ بنایا، جسے دلچسپی پیدا کرنے اور بحث و مباحثہ کے لیے کچھ تفتیشی سوالات، اس طرح کی تیاریاں ہوتی رہے۔ سننے سے پہلے سرگرمیاں، سننے کے درمیان کی سرگرمیاں، سننے کے بعد کی سرگرمیاں، سننے کی سرگرمیوں کی توسیع اور اتباع۔ آپ کا 147 آنسر آپ کا جو ہو جائے گا دوستو صحیح ہو جائے گا۔ سننے سے پہلے کی سرگرمیاں، یہ کیا ہے؟ سننے سے پہلے کی سارا چیزیں کم ہے، یہ کیا ہے؟ کم ہے۔ سننے سے پہلے کی ہی یہ دیکھیے کیا ہے؟ ایک استاد نے کلاس روم میں سننے کی سرگرمیوں کو انجام دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے عمل میں آموزگاروں کو شامل کرنے کے لیے چند غور و خوض کی سرگرمیوں کا منصوبہ بنایا، جسے دلچسپی پیدا کرنے کے بحث و مباحثہ کے لیے کچھ تفصیل، یہ پہلے ہی یہ سب چیزیں کر لیا تو کیا ہے؟ سننے سے پہلے کی سرگرمیاں، سننے کے درمیان بھی نہیں ہوگا، سننے کے بعد کی سرگرمیاں، سننے کی سرگرمیوں کی توسیع اور اتباع، یہ بھی آپ کا نہیں ہوگا، آنسر آپ کا فرسٹ صحیح ہو جائے گا۔ اگر سوالات کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں، 148 کی طرف بڑھتے ہیں۔ درج ذیل میں سے کون زبان کی کلاس میں تصویر پوسٹر کے استعمال کے حوالے سے صحیح نہیں ہے؟ کیا ہے؟ پوسٹر اور تصویر کے استعمال سے آپ کا کون صحیح نہیں ہے؟ یہ بچوں کو تصویر کے مشاہدے کا موقع فراہم کرتا ہے، یہ بچوں کو اپنے اظہار اور تصویروں کو بنیاد پر کچھ لکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے، یہ بچوں کو خیالی دنیا کلاس میں تخلیقیت کا موقع فراہم کرتا ہے، بچوں کو سننے کی مہارت فروغ دینے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ 148 کا دیکھیے گا دوستو، 148 کا آنسر آپ کا 4 ہو جائے گا۔ دیکھیے یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ کلاس پوسٹر کے استعمال کے حوالے سے صحیح نہیں ہے۔ یہاں دیکھیے دوستو، سننا جہاں آگے یہ صحیح آپ کا نہیں ہوگا، کیونکہ سننے کے بارے میں یہاں کچھ ذکر ہی نہیں ہوا ہے، یہاں آپ کا نگیٹو پوچھا ہے۔ یہاں تک کہ ابتدائی زندگی کی سطح پر یہ جو خالی ہے کیا ہے؟ شمار لکھنے میں ہوتا ہے، حروف بنانے میں، لفظوں کو لکھنے میں، جملے بنانے میں اور ڈرائنگ میں۔ دوستو 149 کا دیکھیے گا، 149 کا کیا ہوگا؟ آنسر 4 ہوگا، ڈرائنگ کا کیا ہوگا؟ یعنی یہاں تک ابتدائی خواندگی خواندگی کی سطح پر ڈرائنگ کا شمار لکھنے میں ہوتا ہے، ڈرائنگ جو ہے لکھنے ہی میں شمار ہوتا ہے، یہ آپ کا ایک دم کریکٹ ہو جائے۔ حروف بنانے میں بھی نہیں ہوگا، لفظوں کو لکھنے میں وہ بھی نہیں، جملے میں بھی نہیں۔ 150 کا دیکھیے گا، درج ذیل میں سے کون آموزگاروں کی زبان کی جانچ کے بارے میں سب سے اہم ہے؟ کیا ہے؟ سب سے اہم کیا ہے؟ درج ذیل میں سے کون آموزگاروں کی زبان کی جانچ کے لیے، یعنی زبان کی جانچ جو سیکھنے والا ہے اس کی زبان کی جانچ کے لیے سب سے اہم اگر دیکھا جائے گا کون ہے؟ چیک لسٹ ہے، ریٹنگ اسکیل ہے، پورٹ فولیو ہے، تعامل ہے۔ 150 کا دوستو کیا ہو جائے گا؟ پورٹ فولیو، جانچ کے لیے، زبان کی جانچ یا کسی بھی جانچ کے لیے بہت اہم رکھتا ہے، پورٹ فولیو آپ کا بہت اہم رکھتا ہے دوستو، آپ کا پورٹ فولیو ہو جائے گا۔ دوستو یہاں تک آپ کے سوالات حل کروا دیے، یعنی 60 سوالات آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہوں دوستو، بہت ہی
امید کرتے ہیں کہ بہت اچھے سے آپ لوگ اس کو پڑھے ہوں گے اور سمجھے ہوں گے۔ دوستو آپ سے گزارش یہی ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، تاکہ آپ کو ایگزام تک ہم اسی طریقے کا ویڈیو، اسی طریقے کا کنٹینٹ، اسی طریقے کا پڑھائی آپ لوگوں کے سامنے ہم ڈالتے رہیں گے، شیئر کرتے رہیں گے۔ دوستو یہ آپ کا سی ٹیٹ جنوری 2021 کا پیپر 1، یہ آپ کا PYQ سیریز آج کا جو حل کروائے ہیں 60 سوالات، پیپر 1 پیپر 2 دونوں حل کیے ہیں۔ دوستو ٹھیک ہے، اگلا ویڈیو میں کل ملتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔